Moving forward, today we are pleased to welcome our speaker, Dr. Madhura Kulkarni ma'am, an Ayurvedic practitioner in Sri Rog and Prasuti Tantra with an experience of more than 28 years, first prize at the 75 kilometers ultra run at Bangalore. And today, she will be sharing with us her expert opinion on how to diagnose and manage some common gynecological disorders in Ayurveda. With that, I ask that you give your full attention to Dr. Kulkarni ma'am and help me in welcoming her to begin with today's session. Ma'am, please proceed with the lecture. Yes, thank you. Thank you, dear Ritika, for your kind words. Thank you, Swapna Madam. Thank you, Nima, for this wonderful opportunity to meet you all. I think already 224 eminent doctors from all over India, our Bharat, are listening to us. And it's really a great privilege to share some of the experiences with you all. First of all, I'm thankful to you all also, because today is Sri Krishna Janmashtami Utsav, and we are celebrating a beautiful thing today. And at this auspicious day, you all are taking time and listening to me. So this 1.5 hours is really, really very important for me, because you all are with me. And I want to share some different exciting formulas developed by us in our Sruja Ayurveda Clinic, Kantali. Thank you, Dr. Rujuta Madam, because you are chairperson. I'm privileged and I'm happy to be here with you on the same dais. So thank you, Dr. Rujuta Madam. See, today I'm remembering all those days when I start my learning process. When I was a student, I do remember each and every time I learned things that whatever we cannot do, whatever we cannot perform, what we cannot experience as Ayurvedic student. Just remember those olden days, 30 years back. So that was only the knowledge gathering for our teachers. Then slowly, when I was into the practice, I learned when to intervene and when not to intervene. So that was my first lesson I learned while doing my practice. Third important most thing I learned, each and every doctor should have confidence to treat his or her patient. So most important formula of the practice is self-confidence and less doubt, less fear. Once the doctor himself or herself is confident, the patient gets assurance and relieves from her pain smoothly. So each one of us need to develop a formula of the success, standardized operative process for the success, and the success is totally satisfaction of treating our own patients. So today we'll be sharing that formula of not only the success, but the satisfaction, self-confidence, and how to deal with our own patients you're already dealing with. But some of the different learning processes I have gone through, and I would like to share some of them with you today. So welcome, friends, on this auspicious Krishna Janmashtami day, and we'll be thoroughly enjoying these 1.5 hours, and just be confident that you won't be able to sleep in between. And organizers have told you to switch off cameras, but once, at least in the ending, I would like to see you all and will allow you to switch on the cameras, of course, with the permission of organizers. So I do remember when I started practice long back in 1994, Kathe Madam was my teacher in Mittal College while learning the basic BMS, and I was housewoman under her. I learned many formulas like Garbhini Ahar Vihar, means without any medicine,
how to treat the pregnant patient. So some of the formulas are like while miscarriage or abdominal pain, Gairik Lepan at the lower abdomen. Then in the case of fibroid, Yoni Margase means intravaginally, we used to give douches of Kanchanar Kat, Kanchanar Salkat and Kombad Naki Kwat. Then some of the formulas of Kate Madam was Shilajit, Vangabasma, Chopchinyadi Churna, Dalchini. All these mixture powder she used to treat her patient with gonorrheal infections. Then some of the formulas of Uttar Basti like Falagrut Uttar Basti, Rajanyadi Tel Uttar Basti for cervical erosion. Then I was at Podar to do my PG, MD in Srirog Prasuti, and Kopika Madam used to give Kashmiri Kutaja Grut for Arajaska Yoni Vyapat, that is secondary amenorrhea, sometimes even for the primary amenorrhea, we use this along with Jivaniya Ganakvat Grut. So Kashmiri Kutaja Grut developed by us at the Podar premises. Then so many different formulas by our own Kopikar Madam, specially meant for the infertility patients, and we used to prepare those medicines there at Podar premises, and happy days those were. My guide in Amdar sir, we developed certain formula to understand, to investigate how the to investigate the menstrual blood pattern, how we can give different formulas for different vitiated doshas according to the color, consistency, smell, and the tile test. Means we used to compare it with the white background tiles, and then we used to determine the color of the menstrual fluid and even the texture of the menstrual fluid, and we used to give different formulas explained in Yoni Vyapat Chikitsadhyay. So Stanya Parikshan to treat the pediatric problems, and the perfect formula to the mother to treat the pediatric diseases. Then Kumar Kalyan Ras for different kind of weight related problems in cases of pediatrics. Lot many formulas. Now I'm really feeling nostalgic remembering this. But today, what I need to talk with you is our gynecological practice is specialized, super specialized practice, because we need to understand more than to understand the formula. We need to diagnose the disease properly. We need to diagnose the different kind of stages or phases of the disease and then intervene. And when to stop intervening is also equally important, with the seniority in the practice and our Ayurvedic wisdom along with technological support always helps us to do this. So this is very important thing, what I've learned from my practice, and today I'll be sharing some of the things with you. Sharing my yes. So here, this is the slide from where we will go forward. This is a thread. Second opinion clinic. How is the exciting idea for all of you eminent practitioners to start for second opinion clinic? You all will agree with me that each and every one of us are getting files and files along with the reports. We are getting the patient, and patient ask her, सचमुच ऑपरेशन का जरूरी है क्या मैडम? इसमें कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या मैडम? इसमें हम कुछ अपना आयुर्वेद का सचमुच हो सकता है क्या मैडम? तो we are there when patient is already with some other doctor, and we are there to give the expert opinion.
And there we need to understand the proper diagnosis of the disease, and we need to understand the stage of the disease, exactly explained in our Ayurvedic text. Chaya, Prakopa, Prasara, Sthana, Saushraya, Vyakti and Bhed, Shad Vidha Kriyakal. So when you are approaching towards the specialized clinic, that is second opinion clinic, the baseline Ayurvedic Siddhantas, baseline Ayurvedic wisdom should be there to support you. So, Kriya Kalam Nahapet, when to intervene, when to stop, and when you need to refer. That all things is very well expressed in our Ayurvedic text as a Kriya Kal, and in gynecological practices, we need to understand the Kriya Kal thoroughly and properly. So, just get ready for this second opinion clinics. So just this is a different journey, and every journey starts with a quest or a question. Theory to practice, is that feasible in today's era? The Ayurvedic text has written so long back in the history, and today's women's problems are different, related with her lifestyle, related with the peer pressure, related with the environment. So is it feasible? Theory to practice concept. Let us explore. So rather than focusing on the problem, we should focus on the solution. How? See, the female reproductive system, Sharira and Sharira, need to understand with the Ayurvedic wisdom first, and how to apply that wisdom practically will be the theory to practice concept. So, I think, okay, this is not visible. So, uterine Madhura ma'am, you are not audible. Madhura ma'am. Sorry. Yes. Please. Hello. Yes ma'am. Yes. Last Okay, slide में फिर से दिखाइए क्योंकि वो नहीं दिख रहा था मैम. Yes. I don't know. Okay. So we need to understand the Sharira Rachana, and practical applicability is very important. Hollow structure is Garbhashaya, tubular structure, fallopian tubes, ovary, where all the happening is going on. Then vagina, cervix. So darshana sparshana prashnahi pariksheta roginam. Baseline important most line from the text. Darshan, you need to examine each and every patient thoroughly. So for the examination, you need to do varna pariksha, that is जो ग्रीवा के पीछे का रंग कैसा है पेशेंट का, ओवरऑल इसमें स्किन का कलर कैसा है, ओवरऑल हेयर का स्ट्रक्चर और ये कैसा है, इसके बाद कुछ हर्सिटिज्म या अनवांटेड हेयर है क्या, इसके बाद पेट के ऊपर कुछ अलग सर्जिकल स्कार या कुछ है क्या, फिर इंटरनल एग्जाम के वक्त सर्विक्स का कलर कैसा है,
उसमें बाह्य वजाइना का कलर कैसा है. So you need to understand darshan pariksha sparshan, because see, when you want to differential diagnosis with PIDs and endometriosis, ध्यान में रखो PID में आपको स्पर्श उष्ण मिलेगा. Whenever there is an infection, there is a higher raise of temperature. So sparsha is equally important. Then while examining the patient, if you have pain, you need to understand that you need to overrule, you should not overrule that. And prashna, the detailed history is most important thing while you are treating the gynecological patients. See here, I want to emphasize more and more, when we are talking about these baseline things you're already doing in the practices, just remember I am talking about the second opinion clinic. So when you are Ayurvedic gynecologist, you need to have litmus paper in your clinic, because with the litmus paper test you can understand kshariyatva, alkaline texture of the secretion coming from the vagina. Same way you need to get done pap smear for each and every patient after 30 years of the age. That is very important because you understand when to stop treating. And the most important thing being second opinion clinic or being Ayurvedic gynecologist is, if you can prevent the disease before it occurs, you need to prevent it. I will discuss about 3-4 important cases here. See, I had a patient who had severe abdominal pain during the menstrual cycle. That was dysmenorrhea. And she has been treated with many of the doctors, but that dysmenorrhea was structural deformity. When we got done the PR examination and the sonography examination, the say about 18 to 20 years old girl having dysmenorrhea, continuously taking injectables and painkillers, medicine is not important, but the diagnosis is important. When we are Ayurvedic gynecologists, even for each and every gynecologist is important, but we need to understand this along with the modern technology, along with the Ayurvedic wisdom. Udalinka vyadhim upashaya anupashayabhyam parikshet. If the 18 years old girl is not getting relief with her pain of dysmenorrhea with many tablets and injectables, with the hot fermentation, with the matra basti given premenstrually, the best resource of relief of dysmenorrhea, we need to get done the sonography, and sonography showed there was a bicornuate uterus, so structural deformity, and because of the bicornuate uterus, she was having the pain. So for this diagnosis, we need to take help of the sonography, and she, because of that, she could save much more time during her fertile period. Before her marriage only, we diagnose the structural deformity. That is important. The same manner, why I was telling you about the pap smear, when this is Sharira Rachana Kriya, pathophysiological diseases, so we need to understand the CIN, that is cervical intraepithelial neoplasm. So what is CIN 1, 2, 3? This is normal. First slide is normal pathophysiology of the cervical this thing, and the another one is CIN1, cervical intraepithelial neoplasm. So see, the inflammation layers are going deep and deeper. CIN1, CIN2, CIN4, CIN3, sorry. So when the patient is sexually active and we get it done, this pap smear test mandatory for each and every patient after doing this simple litmus paper test. These things help us to know the pre-cancerous stage, and that is very important. 10 to 20 years before the cancer appears, you can diagnose it with this CIN test. And how to relate it with the Ayurvedic wisdom is, you need to understand the prakriti, constitution of the patient herself,
And if patient is Pitta Prakriti dominant, and if she has recurrent reproductive tract infections, we need to rule out this cervical pathophysiology. That is must. Then even for epithelium of cervix, chronic cervicitis, PS and PV examinations are showing this. Just please pay attention to these basic slides, because this is base of my presentation, where we are going to develop certain practical formulas which will be useful for your second opinion clinic or super specialty clinic for Ayurvedic gynecological practices. So same manner, even vulvar intraepithelial neoplasms are important. Different kind of itching, vulval itching. I had a patient of say about 55 years old, and she had vulval itching and taking all sort of treatments and not getting relief. She came to me, and believe me, when I examined her, she had small warts all around the outer layer of the vagina, outer side of the vagina, and those small warts were giving her irritation and the itching. It was really very disgusting and very discomforting. The 55-year-old age patient, to like this itching was not getting relief. We did the Agni Karma for these warts, and after Agni Karma, these warts, after getting the biopsy done, Agni Karma done, and relieved all the warts, small, many warts. So after getting off these warts, she got relief. So we need to understand how we can give the treatment. The way or method is very important. And yes, we have many options open for Ayurvedic treatments also. It's not like that certain patients we cannot do. So what also with Agni Karma we can do. We had done the patient with cervical polyp also, Kshara Pratisaran Karma. So Apamarga Kshar, if properly applied to the cervical outer layers polyp, we have seen good result with Apamarga Kshar Pratisaran also. We'll be discussing about all these things later on, but basically we need to understand what is CIN when patient, because we are now running second opinion clinic, patients are getting the reports of CIN, VIN, and chocolate cyst, endometriosis. So we need to understand all the basic pathophysiologies and even internal endometrial lining pathophysiology also we need to aware of, and we all are aware of. I'm sure only I'm taking a revision of this along with you, because the next slides are very exciting, and we need to share something practical formulas with you. So these baseline things are important. I do remember one patient of mine. She was 45 years, BMS graduate doctor, and was very upset. She came to me. She said, see, Madhura, I'm suffering from menorrhagia, but more than that, I'm not married. I'm aware that because of I'm not married, non-gravid uterus, and I had history in my family, cancer to my Mausi, my auntie. So I'm really scared. I have hyperplasia of uterine hyperplasia, and my uterine lining is always 12 millimeter, 13 millimeter, 14 millimeter, even after the menses. What to do? So she was scared. Let us get done the hysterectomy. Then we did the DNC for her, and it was not atypia. See, Kriya Kalam na hapayet. Chaya Prakop, 6 stages of the disease should be fixed in your mind. And where exactly we are standing, if we understand the position, then the treatment formulas are easier. So she was not having any atypia. She was only, it was a plain hyperplasia, simple hyperplasia, and coincidentally,
we diagnosed her hypothyroid status. See, all her TSH levels, T3 level, T4 levels were normal, but she was at the perimenopausal age. And when the research dushti was understood by some of the symptoms, presenting symptoms, we did free hormone test for her, and she had hypothyroidism, underlying condition which was not reflecting in TSH. And after treating the hypothyroidism properly, she got relief with the symptoms. Automatically, after 3-4 years, even the menopause occurred, and we could save her uterus. So another important aspect of our Ayurvedic gynecology clinic should be save uterus, and we can avoid lot many hysterectomies. How? So let us explore it. First, after this pathophysiology, 3 important points from Ayurvedic pathophysiology I will like to emphasize. And for that, just remember the baseline Nidan Sharir aspect, what we learned in our colleges in a different manner. See, we learned Shukra Shonita Sanyoge, Yo Bhave Dosh Utkata. प्रकृति के परीक्षण के संबंध में हमने शुक्र और शोणित ऐसा शब्द सुना था. शुद्ध शुक्रार्थवे सत्वे स्वकर्म क्लेश चोदिता, उसमें हमने शोणित शब्द सुना था. तो बेसलाइन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, स्त्री विशिष्ट फैक्टर है, वो है शोणित. आर्तव यह शुक्र जैसा ही एक धातु है जो धारणा धातु जो सपोर्ट करता है स्त्रीत्व के सारे भावों को. मीन्स उसका कोमल जो भाव है, स्वर का कोमलत्व है, ओवरऑल अपीयरेंस है, यूट्रस का भाग है, उसका संपूर्ण सहनन है, वो जो पोषण करता है, जो धारण करता है, दैट इज बेसलाइन इंपॉर्टेंट धातु, दैट इज आर्तव. ऋतौ भवति आर्तवः. काश्यप संहिता मेंशन्स that hine yonyastu balaya kayam gacchati shoditam paripakva sharirayastu kayam yonim cha gacchati. Before the all the reproductive organs starts developing, the shodita is there, and it is just circulating all over the body when the stri is in her bala stage. But after the mugdha stage occurs, when prepubertal stage occurs, startly the development of the reproductive organs starts. And after that, when the totally growth is completed, the artava dhatu is totally in a balanced state, the raja starts secreting out, throwing out of the vagina. So, Shonita, Artava, Artavam, Agneyam. Shonita, baseline, structural important thing for Stri Bhav. Then Raja, Gate Purane Rajasi, Navich Avastitate. Means Raja, Rasat Raktam, Rasajam Stravati Triham. So, baseline Raja. Don't go into the shlokas. Just remember Shonita, baseline important bhav. Then Artava, that is Dhatu. Raja, जो संचित होता है गते पुराने रजसी, वापस वापस नया 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 बनता रहता है. आपके सामने लाओ आप पीरियड्स के बाद सबसे पहले संचिति है रज की, और वो है नव संचिति, नवरज. रस के परिपोषण के बाद रज संचिति है. उसके बाद जो हो रहा है वो है कि वो ओव्यूलेशन हो रहा है, और उसके बाद पुराण रज, और वो बाहर फेंका जाता है, और वो रज, वो आर्तव धातु, और वो उपधातु और रज मल स्वरूप में. तो ये तीनों को आपको ठीक तरह से ध्यान में देखना है. कौन सा बीज भाग है, कौन सा शोणित भाग है, कौन सा स्त्री शुक्र है, कौन सा आर्तव है, कौन सा अपना रज है, कौन सा रस का भाव है. ध्यान में रखो ये सारी चीजें. हम फॉर्मूला जब क्रिएट करेंगे तभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपने हॉर्मोन्स के डायरेक्ट रिलेटेड है. तो ये सारी बेसलाइन
थिंग्स आप अभी माइंड में साइड में फिक्स करके रखिए और आपके आंख के सामने लाइए कि किस तरह से हर एक इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ दोष, धातु, मल अप्लाई करना है। उसके अनुसार अपना जो दवाइयों का फॉर्मूला बनाना है, पंचकर्म का फॉर्मूला बनाना है और रसायन चिकित्सा देनी है। तो अभी आपको जब सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक चलाना है तो आपको बेसलाइन CRF या आपका जो केस रिकॉर्डिंग फॉर्म है वो पहले बनाना चालू करो। तो स्टार्ट राइटिंग डाउन, आपका जो जो इकट्ठा करना है सामग्री उसमें आपको इकट्ठा करना है। फर्स्ट आपका CRF केस रिकॉर्डिंग फॉर्म अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक विजडम और अप्लाइड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये जो बेसलाइन थिंग्स है जो हम पहले से सीख के आए उसका किस भाग में अपने को काम करना है, किस स्टेज में काम करना है, किस तरह से जो एक्सप्रेशन है उसको जानकर जो बाहर फेंका जा रहा है उस आर्तव का परीक्षण करके अंदर की यूट्राइन लाइनिंग का अनुमान लगाना है। बहुत जरूरी है हमको जानना, बाह्य पुष्प से अंत पुष्प का डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसे ही मुझे एक केस याद आ रही है। जब भी मैं पोदार में नई नई हाउस पोस्ट कर रही थी तभी मेरा डायरेक्ट मेरे जो बोलते हैं कंसल्टिंग फीस मुझे 1000 रुपीज मिली थी इनिशियली। एक मेरे को हाउसमैन ने मुझे बोला कि मेरे पास एक पेशेंट है जो फॉरेन कंट्री में रहती है, उसका AMH लेवल बहुत कम है और उसे वहां पे हम कोई मेडिसिन नहीं भेज सकते, लेकिन हमें उसका पूरा जो बीज का शक्ति है, क्वालिटी ऑफ द एग्स है वो भी कम हो रहे हैं और उसका थोड़ा सा FSH लेवल्स बढ़ रहा है, मीन्स प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की अवस्था आ रही है, तो हम क्या मेडिसिन भेज सकते हैं उसको। मैंने उनको बोला कि कमल का पंचांग लो और ये कमल का पंचांग का तेल बना के रखो। इस तेल का अभ्यंग उदर प्रदेश पे अभ्यंग, नाभि पूरण, योनि भाग से उसको लेना है, नाक में उसके ड्रॉप्स डालने हैं और खाने में भी वो अरविंदासा ले सकती है, वही कमल के तेल का 2 ड्रॉप्स खाने में वो ऐड कर सकती है। तो इस कमल के इस सर्वांगीण ट्रीटमेंट से 3 महीने के बाद उसके सारे लेवल्स अच्छे हो गए थे, स्त्री भाव में सुधार हो गया था। जो मैं आयुर्वेदिक विजडम बोलती हूँ कि दिखने में AMH कम है, आपको एंटीमुलेरियन हार्मोन कम आ रहा है, लेकिन उसके जो स्त्री भाव है, स्त्री विशिष्ट भाव क्या है, सहन क्षमता ज्यादा होना, आवाज में कोमलता होना, पेशेंस होना, धीरज होना, ये स्त्री सुलभ भाव है। जब स्त्री चिड़चिड़ी हो रही है, स्त्री को पेशेंस कम हो रहे हैं, तो ध्यान रखो हार्मोनल इम्बैलेंस, ये जो हम नाम देते हैं उसका हमें रस पोषकत्व से, रस शोधन से और रस पाचन से संबंध निकालना है। तो कब हमको रस पाचन करना है, कब हमको रस पोषण करना है और कब हमें ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट मीन्स रस अग्निवर्धक ट्रीटमेंट देनी है। ये तीनों के जो फॉर्मूले है वो अलग अलग है। कमल जो है ये पूरा अपने जीवनीय गण में आता है और वो रस पोषक भाव में आता है। लो AMH में कमल का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। श्री विशिष्ट इस तरह के भाव जब कम होते हैं रस क्षय में, मेनोपॉजल एज में, तभी हमने यष्टि मधु का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। हमने 1000 पेशेंट को यष्टि मधु दी है। यष्टि मधु और दुग्ध का प्रयोग से जो हॉट फ्लैशेस आते हैं, जो मेमोरी लॉस होता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। और रस पाचन, इसमें हमने देखा है बड़ी शेप का उपयोग बहुत अच्छा होता है। पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज में जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है तभी सौंफ, बड़ी शेप 1 ग्राम इतनी बड़ी मात्रा में रसायन काल में अगर देते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखो इसी रस भाव पे एक एक औषधि द्रव्य का इतना अच्छा प्रभाव है। अभी हम प्रैक्टिकली इसको सीख लेते हैं। देखो अभी एक पड़ाव हमारा ऐसा आया, हमने एनाटॉमी देख ली, हमने फिजियोलॉजी देख ली, बेसिक शंखनाभ्याकृति योनि हमने आयुर्वेद विजडम से देख लिया, हमने उसका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करने वो देख लिए। फिर हमने शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग देखा, रज, बीज, अंतपुष्प, बहिपुष्प, आर्तव, शोणित, स्त्री शुक्र, इसका हर एक में किस तरह से अलग अलग है। अभी अपने प्रैक्टिकली देखा कि किस तरह हम हर एक इसमें फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं पोषण, पाचन और पचन से। ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ अग्नि, हमें धातु अग्नि वर्धन करना है
तो इसमें और अलग आगे अगर आप जाए तो आप स्त्री का बाह्य परीक्षण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी डिसीज हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी टेक्स्ट में कहीं गूगल पे आपको नहीं मिलेगा, जो मैंने एक्सपीरियंस बेस बिठाया है। देखो, स्त्री के बारे में ऐसे बोला गया है कि स्त्री सदा तुरा। क्यों सदा तुरा? क्योंकि वो काम में सदैव व्यस्त रहती है, खुद की तरफ ध्यान नहीं देती, और उससे अच्छा उसके जो सिम्टम है, जो सत्व परीक्षण स्त्री का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्त्री भाव का परीक्षण करना ये आयुर्वेद विजडम का बेस लाइन इंपॉर्टेंट थिंग है। आप स्त्री को देखकर किस तरह वो अंदर आ रही है, किस तरह वो एक्सप्रेस हो रही है, किस तरह से बात कर रही है, किस तरह उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसके साथ जो व्यक्ति आया, भले उसकी सास हो, माँ हो, हस्बैंड हो, भाई हो, फ्रेंड हो, तो उसके साथ उसका रिलेशन कैसा है, इस सारी चीजों में एक एक वनौषधि हमें काम आती है। जब भी वो बहुत कंफ्यूज है, उसको मालूम ही नहीं मुझे क्या बताना है, क्या करना है। ध्यान रखो, ये जो इमोशनल कंफ्यूजन है वो ऑलवेज लैक ऑफ एस्ट्रोजन से होता है। लैक ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है यह स्त्री विशिष्ट हार्मोन है। जो स्त्री विशिष्ट हार्मोन आपको उत्साह, आनंद, बुद्धि स्थिरता, ओज के सारे गुण आपको देता है, प्रसन्न, आनंदित्व, स्किन में आपको उसके फर्क लगेगा। अगर ये सारी चीजें नहीं है, वो कंफ्यूज है, उसकी आंखें चंचल है, वो डरी हुई है, जटा माउसी बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह भावनिक गुंता हम बोलते हैं, जिस तरह वो गुंथी हुई है, उस तरह वो भावनिक इमोशनल गुंथे को सुलझाने में मदद करती है। ऐसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। फिर जहां आपको ऐसे लगे कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, लो फील कर रही है और वो एक्सप्रेस नहीं हो रही है, तभी सारीवा बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। ध्यान में रखो, जो जटामाउसी का मैंने बोला इमोशनल डिस्टर्बेंस, वो बहुत बार हमने देखा है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में इसका होता है। उसी तरह मैंने देखा है कि जब भी आपको इस तरह डिप्रेशन और लो फीलिंग है, तभी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है और स्पॉटिंग होता है, डिस्पेरिनिया होता है, परिप्लुता योनि व्यापक के कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ध्यान में रखो, सारीवा ये हमारे लिए बहुत अनंत मूल अच्छे तरह से काम करता है और इस सारीवा का प्रयोग आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। जब भी पेट में दर्द है, पेशेंट एकदम व्यथित है, बार बार पेन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, त्रिफला जैसे सिंपल ड्रग्स, इसमें से बना हुआ त्रिफला गुग्गुल ज्यादा मात्रा में आप यूज करते हो तो उसका अच्छा उपयोग होता है। मीन्स देखो, यहाँ पे कहाँ शोथ है, कहाँ पे शूल है, कहाँ पे क्षय है, अभाव है, उसके अनुसार आपको अलग अलग द्रव्यों का यूज करना है। तो जहाँ पे शोथ है वहां त्रिफला गुग्गुल 2-2 गोली 2-2 घंटे में भी मैंने दी है और उसका अच्छा रिजल्ट पीआईडीज में मैंने देखा है। दशमूलाष्ट और त्रिफला गुग्गुल का बस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, फिर जटामाउसी का और चंद्रप्रभा का कॉम्बिनेशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में सारीवा का, और उसके साथ साथ मैंने देखा है कि चंद्रकला रस का कॉम्बिनेशन। तो छोटे छोटे इसमें अगर हम ये कॉम्बिनेशंस कर देते हैं और उसका रिलेशन हम स्त्री विशिष्ट भाव से करते हैं तो फायदा ज्यादा होता है। मीन्स मैंने ऐसे एक ग्रुप बना के रखा है कि जो अपने सॉफ्टवेयर को फीड करके रखा है, सीआरएफ में ऐसे ऐसे सिम्टम्स आएंगे तो सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए ये एक एक द्रव्य आपको यूज होगा। उसमें हल्दी है, उसमें आंवला है, उसमें सारीवा है, उसमें त्रिफला का बहुत अच्छा है। मेरा नियर टू हार्ट जो है वासा और गुड़वेल, अडुल्सा और गुड़वेल, मेनोरेजिया, मेनार्की मेनोरेजिया, जहाँ अनओवुलेटरी ब्लीडिंग है और वो स्टॉप ही नहीं होती, वासा और गुड़वेल का स्वरस जब आप ज्यादा मात्रा में देते, रिजल्ट बहुत अच्छे मैंने देखे हुए। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस है वो आप एकल द्रव्य से भी करके रखते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दुर्वा है, नागकेशर है, जब भी नागपुष्पम कषायोष्ण, ब्लीडिंग रोकने के लिए हम नागकेशर यूज करते हैं, लेकिन नागपुष्पम उष्ण है
तो किस अवस्था में अपने को नागकेशर का यूज करना है? जब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया है, किसी भी ट्रीटमेंट से रुक नहीं रहा है और इसके लिए ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें आपको नागकेशर का योग बहुत अच्छा फॉर्मूला सिद्ध होता है। जब भी आपको मेनोपॉजल ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तभी आपको दूर्वा और सारीवा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यूज होता है। इसीलिए आपको स्टेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ, उसके अनुसार अलग अलग दोषों का ये, उसके साथ साथ दर्शन स्पर्शन प्रश्न से आपने डायग्नोसिस किया, दोष धातु मल का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार आप कई सारे फॉर्मूलेज अपने आप बना सकते हैं, और ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ उसके मुझे रिजल्ट मिले हैं, और उसके डेफिनेटली मेरे पास उसके रिकॉर्ड्स है। जैसे मैंने बोला कि हजार पेशेंट पे हमने वो देके रखे हैं। आज वही 3-4 गिने चुने फॉर्मूलेज भी आप लेके जाए तो आपका सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक बहुत अच्छा चलेगा। और मुझे लगता है इसमें गायनेकोलॉजी की वैशिष्टता ही ऐसी है कि इसमें हर एक में हर एक स्पेशलाइज ओपीडी आप चला सकते हैं। मैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजर ने बोला है कि एमिनेंट स्पीकर इसके बारे में बोलने जाने वाले हैं, तो आपको एक फीस्ट है पॉलीसिस्टिक ओवरी की। इसमें सिर्फ एक लाइन में बोलूंगी, ध्यान रखो, संतर्पण जन्य अपतर्पण जन्य किस तरह से व्याधि आगे बढ़ी है, सेम सिम्टम्स के लिए वो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहेगा। कॉमन डायग्नोसिस लेके पेशेंट आपके पास आइए, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, आपका सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक होगा कि पेशेंट को किस तरह का प्रॉब्लम है और किस तरह से संप्राप्ति जा रही है, और उस संप्राप्ति भंग के लिए आप किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो देखो, इसमें संतर्पण जन्य जो है स्थूल है पेशेंट, उसका सेंट्रलाइज ओबेसिटी है, उसको हर्सिटिज्म है, उसको यहाँ कालापन आ गया, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स है, उसको मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस है, उसको पिंपल्स है, तो ध्यान रखो इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसे ज्यादा मिलता है, स्थूल ऐसे पेशेंट है, और तभी आपको उसका जो ट्रीटमेंट है वो संतर्पण जन्य जो भी डिसीजेस है उसके ट्रीटमेंट्स आप किस तरह से देते हैं उस तरह से फोकस करना है। लेकिन सिंपल प्लीज आप मत भूलना, इंसुलिन, सीरम इंसुलिन उसका टेस्ट करना है। सीरम इंसुलिन अगर 10 से ज्यादा है तो आप रीड करना सीखो, जो भी इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो आयुर्वेदिक विजडम से रीड करना सीखो। हमारी नीमा यही कहती है कि आपको पूरा इंटीग्रेटिव अप्रोच चाहिए, आपको होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, और टुडेज एरा वी नीड टू हैव दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच। और अगर 10 से ज्यादा इंसुलिन है तो फास्टिंग इंसुलिन है, तो ध्यान रखो ये आपका संतर्पण जन्य तकलीफ है, और आप प्रूव भी कर सकते हो। देखो, हमने चंद्रप्रभावटी दी, आरोग्यवर्धिनी दी, सिंपल सी मेडिसिन दी, साइक्लिकल पंचकर्म दिया, लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद जब वापस हम सीरम इंसुलिन करते हैं तो ये फास्टिंग इंसुलिन 10 से कम हो गया है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द आंसर फॉर द पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। लेकिन ये संतर्पण जन्य है, अपतर्पण जन्य है, या पेशेंट संतान इच्छुक है, मीन्स वी आर ट्रीटिंग पीसीओडी फॉर द फर्टिलिटी, ये अपने आप के ही दिमाग में आपको संप्राप्ति बनानी है और उसके अनुसार आपको आगे फ्लो ट्रीटमेंट का लेके जाना है। तो ध्यान में रखिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, संतर्पण जन्य है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इंसुलिन लेवल्स करके लेने हैं पेशेंट के, सोनोग्राफी और इस सब के साथ साथ। और इसके साथ being Ayurvedic practitioner, we need to advise her properly the lifestyle modification. उसमें ब्रेकफास्ट से पहले सूर्य नमस्कार, सिर्फ इतना करने के साथ, योग साधना करने के साथ कई सारे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज वैसे भी कम हो जाते हैं। ये सारी चीजें तो आपको मालूम ही है। दूसरा जो है पीसीओएस में कंसर्न जो है कि जिसमें आपको पुरुषवाचक मीन्स जो हाइपर एंड्रोजेनिक ये है पीसीओएस है, उसमें अपतर्पण ज्यादा मिलते हैं, लीन पेशेंट है, फिर भी उसको पीसीओडी, उसको ओव्युलेटरी डिसऑर्डर है, तभी आपको रस, पाचक और पोषकत्व का विचार करना चाहिए। और वहां श्रीफल कुसुमवटी बहुत अच्छी तरह से यूज होती है। तो इस तरह से जो रसायन द्रव्य है उसका आपको विचार ज्यादा करना जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है पीसीओएस में नो आंसर, बहुत सारी ट्रीटमेंट दी। सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक आप क्या बोलते हो मैडम? मैंने तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी किया, पंचकर्म भी किया, मैंने चंद्रप्रभावटी कई सारी खा ली है, दशमूलारिष्ट ले के आई हूँ, मैं कुमारी आसव लेके आई हूँ,
फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसमें हमने एक मॉडल तैयार किया है. Let me share my own secret formula for my infertility or PCOS or menstrual irregularity patients, that is cyclical panchakarma treatment. See, मैंने जैसे बोला कि हम फिजियोलॉजी आयुर्वेदिक विजडम से देखते हैं, तो पीरियड आने के पहले अपान वायु की दुष्टि और वात विशेषण रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स डाउन रहते हैं, ब्लोटिंग रहता है, हेवीनेस रहता है. उस अवस्था में मात्रा बस्ती, 3 मात्रा बस्ती भी देंगे तो भी चलेगा, प्री मेंस्ट्रुअल मात्रा बस्ती. पीरियड के बाद इमीडिएटली जब रज, नूतन रज का क्षय होना चालू हो रहा है, वो जो फेज है, उस अवस्था में ध्यान में रखो कि आपको वमन देना है. 5th, 6th, 7th डे ऑफ द मेंसेस वमन, सद्यो वमन विथ यष्टि मधु फाट. प्लीज ये बंद करा. 5th, 6th, 7th days woman, so that is नवीन नूतन रज संचय काल. So sometimes technology is irritable. Thank you sir. तो उसे आपको यूज लेना है. फिर 12th day of the menses, जब पित्त कन्वर्जन का जो फेज है, ओव्यूलेशन का फेज है, तभी आपको विरेचन देना है. मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट देखे, स्टबॉर्न ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, स्टबॉर्न ओव्यूलेशन, फॉलिकल बढ़ता है फूटता ही नहीं, फिर पॉलिसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी मेडिसिन दी. देखो उस काल में अगर हम गंधर्वारी तकी से भी, एरंडस स्नेह से भी, किसी भी चीज से हम अगर विरेचन देते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. और विरेचन 12 to 14 डेज अगर हम देते हैं तो इसमें ओव्यूलेशन अच्छा होता है. वमन, विरेचन, बस्ती, ऐसे एक साइकिल होने के बाद नेक्स्ट साइकिल में 5th, 6th, 7th डेज उत्तर बस्ती. फिर ऐसे 3 साइक्लिकल पंचकर्म. मेरे कई सारे कलीग्स ने, मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने इसका डेटा भी रखा है. इस साइक्लिकल पंचकर्म का स्टबॉर्न ओव्यूलेशन में, इनफर्टिलिटी में, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में, हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत अच्छा फायदा हमने देखा है. अभी इसमें हम ज्यादा स्नेहपान नहीं करवा रहे हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म नहीं करवा रहे, लेकिन जरूर वो जो बेसिक कंसेप्ट है कि वमन के बाद जो चीज हो रही है अपने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस में जो फर्क पड़ रहा है, उसका हमने फायदा ले लिया. विरेचिर पृथक भावे, विरेचन के बाद जिस तरह से अपना देखो, काम 2 ही महाभूतों पे करना है, जल महाभूत और अग्नि महाभूत. एक तो आपको अग्नि बढ़ानी है वमन के बाद जो बढ़ती है, विरेचन जल महाभूत को हमें कंट्रोल रखना है, उसका दूषित तत्व कम करना है, उसके बाद ओव्यूलेशन अच्छा होता है. मात्रा बस्ती पोषण, कफ का काम ही वो है कि धारण करना, पोषण करना, पृथ्वी महाभूत का काम ही है टिकाए रखना. तो उसके कारण जो भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाउन द लाइन में तकलीफ है वो कम होती देखती है. और ये जस्ट ट्रस्ट मी, ये 3 साइक्लिकल पंचकर्म के 3 साइकिल, 6 साइकिल के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. तो आप सब लोग भी इसके आपके एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं. डिस्मेनोरिया बहुत कॉमन सिम्टम्स है, कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बार बार पेशेंट अलग अलग दवाइयां लेते रहते हैं. सीक्रेट फॉर्मूलाज फॉर डिस्मेनोरिया, सबसे पहला, रूल आउट द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, rule out the infection part, rule out the psychological emotional part. देखो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, एनवायरमेंटल और इमोशनल भी प्रॉब्लम होते हैं. तो जस्ट रूल आउट द इमोशनल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड ट्रीट डिस्मेनोरिया. दैट हेल्प्स. अपने टेक्स्ट, अपने आयुर्वेदिक विजडम को आप क्वेश्चन करो तो देखो हम देखते हैं डिस्मेनोरिया कौन से इसमें होता है. तो उदावरता योनि व्यापत का एक्सप्रेशन देते हुए इतना अच्छा, देखो टेक्स्ट टू प्रैक्टिस कैसे, हर बार जब भी ये श्लोक याद आते हैं, जब भी ये चीजें सामने आती है आयुर्वेद के बारे में, ऐसे लगता है नहीं, वो टेक्स्ट जो है वो ईच एंड एवरी वर्ड इज साइंटिफिक एंड यूजफुल इन टूडेज एरा. हमारे सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक में चलो सभी जगह से थक के आ गए, हमारे पास डिस्मेनोरिया आया, हमारे उदावरता योनि व्यापत क्या बोलती है, आर्तवं स विमुक्ते तत्क्षणं लभते सुखम.
Differential diagnosis is important while treating dysmenorias. ब्लीडिंग जैसे स्टार्ट हुआ, पेन कम, इसलिए डिटेल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेन कम हो गया, स्पाज्म कम हो गया, स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया, कुछ भी आप उसको नाम लो, लेकिन स्पाज्म कम हो गया। जैसे ही ब्लीडिंग आउट हुआ तत्क्षणम, जब भी हाँ पीरियड चालू होने तक बहुत पेन है, पेन कम हो गया, उस अवस्था में ध्यान रखो आरोग्यवर्धिनी और हिंगवाष्टक चूर्ण और दशमूलारिष्ट, ये फॉर्मूला सुपरहिट है। जब उदावरता योनिव्यापत है तत्क्षणम मुंचते सुखम जो बोला है उसके लिए। फिर जो परिप्लुता योनिव्यापत है, ग्राम्य धर्मे रुजाम भृशम या पीआईडीज है, जैसे मैंने देखा कि आप इंटरनल एग्जामिनेशन करते हो, ग्राम्य धर्मे रुजा भृशम में डिस्पेरियनिया, और हमारी पीवी भी पेनफुल होगी। तो जो सर्विक्स है, हम पीवी कर रहे हैं, सर्विक्स अगर एक जगह घूम रही है एक बाजू में तो मे बी पीआईडी है, दोनों बाजू में भी नहीं घूम रही है, एकदम फिक्स है, तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो परिप्लुता में भी अलग अलग फेजेस है, सिस्ट फॉर्मेशन का फेज, प्राइमरी इन्फ्लेमेशन का फेज, हमने शुरू में ही षटक्रिया काल को देखा है। तो 6 पॉइंट्स करके रखना, हम कौन से फ्लोर पे है वो पहले हमें ध्यान रखना है, इस फ्लोर पे, और हमें इस तरह की ट्रीटमेंट करनी है। तो इनिशियल में आप तो आरोग्यवर्धिनी हिंगवाष्टक का फॉर्मूला दे दिया, फिर परिप्लुता में भी इनिशियल इन्फेक्शन है, इनिशियल है, आपने लोकल जो क्लींजिंग है, योनि धावन है, उसका यूज किया, और उसके साथ साथ आप ध्यान में रखो यहाँ आपको त्रिफला गुग्गुल का यूज है, यहाँ आपको चंद्रकला रस का यूज है, यहाँ आपको जैसे दशमूलारिष्ट आपने उदावरता योनिव्यापत के लिए यूज किया, और परिप्लुता, पित्तज विसिएशन, और जो सर्वाइकल मूवमेंट पे आपने देखा, इन्फेक्शन के इसके साथ साथ देखा हमने कौन सा ड्रग एकल द्रव्य सुना था, सारीवाद्यासो आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद अगर आपने देखा कि दोनों जगह यूज मूव नहीं हो रहा, एंडोमेट्रियोसिस है, इसके कारण पेन हो रहा है, तो आपको अरविंदासो का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसके बाद अगर एडिनोमायोसिस है, अगर फाइब्रॉइड है, मीन्स कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन वहां आ रहा है, यूट्रस वो फाइब्रॉइड आपकी यूट्राइन लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम को प्रेस कर रहा है, मेनोरेजिया और पेन साथ साथ में हो रहा है, तो आप तीक्ष्ण उष्ण औषध नहीं दे सकते, और तभी आपको यूज करना है उसको शंखवटी का, जैसे आप रूटीन में यूज करते हो उस तरह मेनोरेजिया के साथ आप शंखवटी को यूज नहीं कर सकते। अगर जब मेनोरेजिया के साथ आपको पेन जोर से हो रहा है और उसमें आप समझ रहे कि एक तो फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है, या तो एंडोमेट्रियोसिस है, आपको बाद में उसको सबको रूल आउट करना है, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट के लिए आपको जो भी द्रव्य देना है वो है कांचनार गुग्गुल। ध्यान में रखो, कांचनारो हिमोग्राही। क्यों हर एक चीज का अलग अलग लक्षण, हर एक गुण बताया गया है, तो शीतवीर्य कौन सा है, उष्णवीर्य कौन सा है, औषधि का भी आपको इससे रिलेशन करने आना चाहिए, और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। जब ब्लीडिंग ज्यादा है तभी आपको स्फटिक जल का अधोदर पे पट्टिका रखना यूज होता है, वो कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन स्फटिक से त्वरित आकुंचन होता है और जो स्पाज्म है उसको अच्छा लगता है। हम बार बार देखते हैं कि डिस्मेनोरिया में हॉट फर्मेंटेशन देते हैं, लेकिन हॉट फर्मेंटेशन कब देना है, जब वात विसिएशन है, जब ब्लीडिंग ज्यादा और पित्त विसिएशन है, तो आपको स्फटिक जल का लोकल ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब स्वेलिंग ज्यादा है तभी आपको लोकल हिंगवाष्टक चूर्ण का भी लेपन हमने देखा है। हमने कई बार लेपन चिकित्सा पे अच्छा काम उदाहरण में कई सारे पेशेंट्स पे प्रैक्टिकली देखा है, जो हम मेरे क्लिनिक में भी मैं करती हूँ। तो ऐसे सारे लोकल एप्लीकेशंस भी इसके साथ आपको आपके सेकंड ओपिनियन क्लिनिक में इनकलकेट करने चाहिए। और डिस्मेनोरिया का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है प्री मेंस्ट्रुअली आपको मात्रा बस्ती देना है। तो मात्रा बस्ती अगर प्री मेंस्ट्रुअली देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, डिस्मेनोरिया कई हद तक कम हो जाता है। इसमें एक चंद्रप्रभा वटी जो है बहुत आश्चर्यकारक वटी है, बहुत आश्चर्यकारक फॉर्मूला है। चंद्रप्रभा वचामुस्तम भूनिम्बामृत दारुकम, कॉम्बिनेशन इसका देखो, इसमें सब आमपाचक द्रव्य है और चंद्रप्रभा, जिस तरह चांद की आभा उस तरह का प्रभा जिस ड्रग से आता है वो चंद्रप्रभा है। आपको मालूम है आयुर्वेद वाले कवि रहे होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत काव्यात्मक रीति से प्रेजेंट किया है, लेकिन वो पूर्णतः साइंटिफिक है। चंद्रप्रभा एक ऐसी वटी है कि जो
हार्मोनल इम्बैलेंस में अच्छा काम करती है। जब लैक ऑफ ये हो, लैक ऑफ आपको आर्तव धातु का परिपोषण नहीं हो रहा है, जो सप्त धातु मैंने बोले, सप्त धातु का पोषण होते वक्त का जो आर्तव धातु है उसका परिपोष अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो चंद्र प्रभावती ये एक द्रव्य ही बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो उसको अपने को ध्यान में रखना है डिस्मेनोरिया के लिए भी। तो आरोग्यवर्धिनी हिंगवाष्टक के हमने लगभग 200 पेशेंट का डेटा रख के उसका पेपर प्रेजेंट किया है। 2 गोली 3 बार आरोग्यवर्धिनी हिंगवाष्टक अपान काल में, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे। दशमूलारिष्ट का भी अच्छा रिजल्ट हमने, मीन्स ये फॉर्मूलाज डिटेल स्टडी न करते सबको देकर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हमने देखा है। अभी ल्यूकोरिया, फ्रस्ट्रेशन एंड मोर फ्रस्ट्रेशन। सबसे पहले तो ल्यूकोरिया, अरे मेरे को सफेद पानी जाता है, सफेद पानी जाता है। और बहुत बार आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के पास, अपने पास तो ये ल्यूकोरिया के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो we need to understand whether these secretions are healthy or unhealthy. तो काउंसलिंग पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हिस्ट्री टेकिंग के बाद का काउंसलिंग पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस व्हेन अवर्स इज सेकंड ओपिनियन क्लिनिक। अपने को पेशेंट को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना, बिकॉज नाउअडेज इन टुडेज एरा patient is already with the report, patient is already with the basic knowledge on Google of anatomy, physiology, even certain drugs, so they have the basic knowledge. So what special knowledge we need to have according to Ayurvedic gynecology is, while treating leukorrhea, we need to understand the basic constitution of the patient, and along with it, basic Agni Pariksha is important. So how the metabolism is. We always say that polycystic ovary disease is metabolic disorder. So polycystic ovary disease is metabolic disorder. Then we focus on triglycerides, we focus on cholesterol, we focus on fat percent of the patient, and we give all the references for the metabolism. But remember, while treating each and every gynecological patient, we need to understand the underlying pathophysiology of Rasadhatavagni. And same way, while treating leukorrhea, Rasadhatavagni is important. So we should ask, we need to take detailed history, the secretion, quality and quantity. If 3 questions important, do you need to change the inners 3-4 times? Do you have itching or smell or odor along with it? Or do you have any pain along with the secretion? Normal secretions and abnormal secretions, you should differentiate and you should make patient understand, see, this is not leukorrhea, this is your normal secretions. And you all are doing these practices. But while running the super specialty clinic, now we'll have this questionnaire ready with us to give our patient. So only take your assistant doctor will check this questionnaire filled by your patient, and then you will come to know, no, this much secretion along with this many symptoms, so this dosha is vitiated and this problem may be there. So final diagnosis will be yours, and baseline this questionnaire part is very important. Then while treating leukorrhea, Yoni Dhawan is like a treatment of option. See, Yoni Dhawan is a beautiful most treatment option offered in Ayurvedic gynecological practices, very well expressed and written in Yoni Vyapak Chikitsa Adhyay Charak Chikitsa 30th chapter. So you please go through this chapter and you will get lot many formulas like Granthartha Ve Pibet Patha Vyosha Vriksha Kajam Jalam. See, I have practically implemented it. When there is bleeding along with the clots, means the menorrhagia, Patha, Kutaj and Gokshur combination helps. Patha, Kutaj, Gokshur oral combination. Then while there is itching and related with Rasadhatavagni, itching and leukorrhea, means white discharge, use
the local dhavan with panchavalkal quat when the pitta vitiation is there, when cervical erosion is there, and when the chances of infections are more. So we had developed the panchavalkal varti and did many experiments with panchavalkal, because I was working with Dr. Varma Vaidya at Spark. And those days we did extensive research on this panchavalkal local yoni dhavan. And this panchavalkal definitely helps to relieve some of the symptoms for leukorrhea. And we did again research for Ashok for menorrhagia induced by copper-T insertion. So these researches I will like to share in between. Now we'll focus on leukorrhea. For leukorrhea, panchavalkal for pitta vitiation, then dashamul for vata vitiation, and even combination of triphala, combination of sariva, combination of yashti madhu. See, yashti madhu is a wonder drug as it contains phytoestrogen. Yashti hima gurusvadvi chakshusha balavarnakrut. A beautiful rasayan is really a gift for us for running the second opinion gynecological clinic. Yashti madhu decoction is used specifically when patient is having itching and different kind of discharges, annoying discharges during perimenopausal age. So perimenopausal age or menopausal age, Yashti madhu orally, and for local wash, it is important. We have set some of the group of ekal dravya for local application also, internally also, even nasal instillation, and it helps a lot. Not many formulas to share, so let us be fast. So for leukorrhea, local dhavan, local sinchan, I have seen takridhara or buttermilk wash. The buttermilk prepare at home with lot of water, curd, properly made buttermilk, and the local wash of buttermilk helps when patient is complaining specifically leukorrhea after coitus. After वो पेशेंट डायरेक्टली लीडिंग सिम्टम आपको बोलती है कि कांटेक्ट होने के बाद मुझे बहुत ज्यादा पेट में भी दुखता है और सफेद पानी जाता है. तो समटाइम्स इमीडिएटली आफ्टर द coitus certain discharge तो normal for 2-3 days after the contact, after the sexual contact, if patient is having this kind of secretions, definitely some or other infection is there, and in that case you need to treat both the partners. See, in the case of leukorrhea, you need to treat both the partners with local wash and even with the oral tablets. Even in gynecologists are also treating both the partners, but for a particular period. Some doxycycline is given, or certain antibiotics, cetronidazole is given as latest trend. But remember, according to Ayurveda, if Artava Pariposhakal is 1 month, and if Shukra Pariposhakal is of 3 months, you need to treat the patient for leukorrhea and for both the partners for 3 complete months. Okay, so always treat it thoroughly, and along with yoga basti, if you panchakarma, the proper panchakarma of choice for leukorrhea is yoga basti. After yoga basti, you get relieved for constipation also. You start absorbing more and more micronutrients in your intestines after yapan basti or after balya basti, and these micronutrients help patient to develop the proper reproductive flora. Just do remember, when the vaginal flora is not good, when see B12 deficiency also causes different kind of infections and different kind of secretions or secretions.
So when you are treating the patient, if you give supplements of vitamin B12, D3, it definitely helps. Even before conception, I always tell patient to, like you all must be giving folic acid, B12, vitamin D3, but just do remember when we we add, this is add-on treatment because ours is second opinion clinic. If we give add-on treatment of yoga basti, always it helps to absorb these micronutrients in a better manner, and so the disease gets totally symptomatically relieved, and even root cause is gone. So always remember for leukorrhea, yoga basti. Then again, dyspareunia, maybe emotional cause, anxiety cause, psychological cause. So interpersonal relationship you need to ask. But PIDs are very common. Some HPV infections are common. Certain gonorrheal infections are common. STDs are common. And for that, you need to give the medicine in a larger quantity. Quality of the medicine is important, but quantity of the medicine is important. See, we did extrinsic research on Google. How many Google tablets we can give in a day? So 12 Google tablets you can give. Gugulu Vishadastikta Viryoshna Pittalasara. So Google is always helpful to treat this kind of infections, but in a larger amount. One tablet 2 times is not a dose for the Google. But if the patient is of Pitta Prakruti, you need to give proper Anupan along with Google. Always remember, while treating gynecological patients, Anupan is most important. Never ever give the simple dravya. Always look for the Kal, always look for the Anupan. Means Chandraprabhavati also, you need to give at Apan Kal, so before your food. Gugul Kalpa need to give up 1.5 hours after your food, and then along with certain Anupan. So sometimes with Takra, sometimes with Adraka Swaras, sometimes with Panchakola, sometimes with Sarivadya, sometimes with Chandanasav. Chandan is a drug of the choice for the Guhya Roga Pratibandha Chandan. So Chandanadi Vati, Chandanasav is very good for different kind of treating different kind of PIDs. Again, different stages, different expression, and different symptoms. So always go by symptoms, go by stage of the disease, and go by woman to woman, different kind of formulations. Now you are we are going towards the formulas, and our baseline, whether we are treating Bija, Rakta, Shonita, whether which part of Triavarta Yoni we are treating, which part of the yoni is affected. See here at dyspareunia, even Manohar Srotas you need to examine. So if Manohar Srotas is affected, which drug of choice you have, different kind of options you have already told you about it. And counseling, along with counseling, you should give assurance. Ashwasan Chikitsa is also very much important. Sometimes dilatation is done if the stricture of the internal cervical stenosis is there, stricture of the muscles are there, even vagina is smaller, uterus is retroverted, the dyspareunia occurs. So size, position of cervix, uterus, the position of relation of cervical and vaginal, cervical, yes, internal vaginal lining, then vaginal lining, then spurge of that, then local application, which local application you need to prefer. All these things includes to treat, when it includes in the treatment module of complete treatment module of the dyspareunia. So you आप vagina treat कर रहे हो तो you need to give local applications. आप cervix treat कर रहे हो तो you need to go for उत्तर बस्ती. आप internal lining treat कर रहे हो तो you should go for the intrauterine उत्तर बस्ती. We'll be talking about this exciting formulas of उत्तर बस्ती. Menorrhagia, again, see,
years back, there was no appendix. All appendix surgeons would remove. And after that, there was literally a wave of removing uterus. But again, now scientists and gynecologists are focusing of saving uterus. And here our role is very important, being Ayurvedic gynecologists, that we need to understand when to intervene, why to intervene, and when not to intervene. Menorrhagia because of fibroids. If the fibroid is less than 5 cm, it's a thumb rule, less than 5 centimeter, not pressing the endometrium, you can treat fibroid with Kshara Dravya. We have developed a tablet for the fibroid capsule, Yavakshar, then Apamagashar, combination of Kanchanar, different drugs. So that fibroid capsule definitely helps. During the perimenopausal age, already the chances of shrinking the fibroid are more. So which age you are treating the fibroid? Fertile age, menopausal age, perimenopausal age, that too very important. So always remember, while treating fibroid, the size of the fibroid, positioning of the fibroid, and the expectation for conception for that woman. So age of the fibroid, variety of the woman is very important. So according to that, different drug formulas are there. Fibroids are 99% non-malignant. So you can aram se treat fibroid. But in the case of adenomyosis or endometriosis, you need to be vigilant. You need to get done all the investigation part. Internal endometrial DNC should get done. And then only different. See, now we should focus on the individualized Sukshmatara, Sukshmatama aspect. We are going to the core part of our lecture and core part of the fantastic formulas of our own Ayurvedic gynecological text, where you can implement it practically. See, when the menorrhagia is there, always just ask detailed history for the quality of the menstrual secretion. Should they, क्या बोला है उसमें, क्या सब ये किया है उन्होंने, शशास्रु प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षारसोतमम तदार्थवम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजेत. उसका दाग छोड़ता है या ना छोड़ता है वस्त्र पर. आपके क्वेश्चन है मेनोरेजिया के लिए अलग हो गए, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे, पेशेंट रिमेम्बर करेगी और जरूर उसका उत्तर देगी, और वो उस बहिपुष्पका परीक्षण से आपको अंतपुष्पका मालूम होगा. तो उसका किस तरह का कलर है, उसके अनुसार आपका जो फॉर्मूला है मेनोरेजिया ट्रीट करने का, वो हर टाइम अलग अलग होगा. वासा गुडवेल फॉर अनोवेटरी साइकिल मैंने ऑलरेडी आपको वो बता दिया है. हाइपोप्लाजियाज में नागकेशर आपको यूज करना है. और इसमें बहुत अच्छा फॉर्मूला जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, जिसमें स्तंभक औषधि डायरेक्ट जो स्तंभन करती है, ऐसी औषधि है कुटज, खदीर, हमको बोलबद्ध रस मालूम है, बड़ी बड़ी औषधि. कभी कभी सिंपल औषधि से ही अच्छा काम हो जाता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है. हम बोलबद्ध रस करते हैं, लेकिन कुटज और खदीर से भी देखो, सूक्ष्म केश प्रतिकाशा बीज रक्तवासरा, जो सप्लाई है यूट्रस को, वो सूक्ष्म केश प्रतिकाश ऐसे रक्तवाहिनियां से है. वो जो सप्लाई है वहां कंजेशन ज्यादा है, वो ज्यादा स्वोलन है, और तभी मेनोरेजिया ज्यादा हो रहा है. एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो मेनोरेजिया है उसके लिए हमने नागकेशर सोचा. और जो सूक्ष्म केश प्रतिकाशा मीन्स बाहर से जो स्पाज्मोटिक और ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन से यूट्राइन जो पूरा स्वोलन हो गया और वहां से जो ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, वहां अगर आपको स्तंभन देना है तो वहां सबसे बेस्ट स्तंभन आपको खदीर है, वहां सबसे बेस्ट स्तंभन आपको कूटज है. तो ये सिंपल दवाई बहुत अच्छी तरह से आपको काम करते हुए देखी जाएगी. मेनोरेजिया वाज सब्जेक्ट फॉर माय एमडी थीसिस, तो आई ट्राइड लॉट मेनी फॉर्मुलेशंस, बट ये जो हम सूक्ष्मतर भाग में जाते हैं उसमें ध्यान रखो, दोष का 3 तरह से विशेषण होता है, गुणतः, कर्मतः या क्रियात्मकतः.
तो किस तरह से दोष बिगड़ा हुआ है वो ध्यान रखना गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ आपको, जैसे क्षयजन्य पैथोलॉजी है, बहुत बार मेनोपॉजल एज है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत थिन है लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि वहां हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। हाइपोथैलेमस से जो नेगेटिव फीडबैक है वो सारे यहाँ तीतर बितर हो गया है, अंदर से तो लाइनिंग थिन है लेकिन ब्लीडिंग आपको देखा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा जा रहा है। और तभी आपको जो ड्रग ऑफ चॉइस हम जिसे बोलते हैं वो है धातकी, धातक क्यासव, धातकी ये ड्रग ऑफ चॉइस तभी आपके लिए है। और पुष्यानुक चूर्ण जैसे हम इसमें एक फॉर्मूला दे देते हैं ग्लूकोरिया में, बहुत वेल नोन फॉर्मूला है, लेकिन इस मेनोपॉजल मेनोरेजिया में भी पुष्यानुक चूर्ण का बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। तो सिंपल फॉर्मूले है, लेकिन कब किस तरह से हो रहा है, क्षयजन्य है, गुण किस तरह, वात का चलगुण बढ़ गया है, इसके लिए अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसको स्तंभन करने के लिए, स्थिरत्व लाने के लिए धातकी आपको यूज होगी। जब भी वात का रुक्ष गुण बढ़ गया है उसको स्निग्धत्व लाने के लिए आपको यष्टि मधु का उपयोग होगा। सेम मेनोपॉजल मेनोरेजिया में कौन सा गुण बढ़ गया है, किस तरह से वो लक्षण निर्माण कर रहा है, उसका सूक्ष्म ही समीक्षेषाम दोष औषध निरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न तो स्खलति जातुचित। सो दोष का भी सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम विचार करना है और औषध का भी सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम उपयोग करना है। तो इस तरह के फॉर्मुलेशंस आप अपने आप यूज कर सकते हो और इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेनोरेजिया में आप इस तरह कर सकते हो। बहुत सारे है एंडोमेट्रियोसिस, हेल्पलेस फील होता है, चॉकलेट सिस्ट अगर रिमूव करते हैं तो फर्टिलिटी डैमेज हो जाती है, वही रखते हो तो बाद में वो कैंसरस कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा। एंडोमेट्रियोसिस में आपको बहुत विजिलेंट रहना जरूरी है। इसमें आपको अलग अलग फॉर्मूलेज है और इसमें भी सिम्टम वाइज आपके किसमें, जैसे मैंने सिंपल सा ये किया, उदावरता योनि व्यापक वात दोष का ज्यादा अधिक है, आरोग्यवर्धिनी इंगवाष्टक इंटरनली आपको करने के लिए सूजन कम करने के लिए यूज होगा। उपप्लुता योनिवापत जहाँ पे सिक्रेशन ज्यादा है, कफज ये ज्यादा है तो वहां लेखन चिकित्सा का आपको यूज करना है और इसके लिए अलग अलग गूगल कल्प का उपयोग आपको करना है। और परिप्लुता योनिवापत यहाँ आपको चंद्रकला है, सूतशेखर है, इस तरह का पित्त शमन का सारीवा है, कमल है, चंदन है, इस तरह के ड्रग्स को यूज करना है। तो किस तरह का आपको फॉर्मूला आगे बढ़ाते जाना है वो आपको जरूरी। एंडोमेट्रियोसिस में मात्रा बस्ती अच्छा काम करती है, निरूह बस्ती का कभी कभी तकलीफ मैंने देखा है क्योंकि इसमें विमार्ग गमन है, जो टिश्यूज है, सेल्स है, वो अलग जगह जाके स्थापित हो गए, तो इसमें आपको ज्यादा ये जरूरी करना है। इसमें अभी हमने विद्याग्नि का एक्यूट एब्डोमिनल पेन अलॉन्ग विद एंडोमेट्रियोसिस, इसमें विद्याग्नि का प्रयोग लोकल एब्डोमेन लोअर नाभि पे अच्छा देखा है। तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का मैंने बताया। इसमें एक फॉर्मूला बहुत अच्छा जादू का मेरे पास है, सुवर्ण मालिनी वसंत, 5th डे ऑफ द मेंसेस टू 10th डे ऑफ द मेंसेस। अगर सुवर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग रसायन काल में सुबह करते हैं फलकृत के साथ तो बीज क्वालिटी सुधारने में बहुत अच्छा मदद होता है, ऐसे मैंने देखा है। पीओएफ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बहुत सारे केसेस में देखती हूँ। अभी मेरे पास एक पेशेंट थी जिसका 2nd ऑफ द मेंसेस आपने एलएच और एफएसएच देखा तो वो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब जो नॉर्मल ओव्यूलेशन है और जो बेसिक पूरे इंटरनल ये है चेंजेस वो हो नहीं पा रहे, तो इसमें नस्सी की ट्रीटमेंट बहुत अच्छा फायदेकर होती है। जैसे मिसकैरेज, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण मिसकैरेज की एक मेरी पेशेंट थी जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म था। ध्यान में रखिए आपको किस तरह से ये पढ़ने आना चाहिए। तो टीएसएच अगर 5 तक है तो आप बोलोगे नहीं ये तो नॉर्मल रिपोर्ट है, लेकिन जिस पेशेंट संतान इच्छुक है, जिसको कंसीव करना है और उसका टीएसएच अगर 2.5 से ज्यादा है तो उसको बाद में मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा है, तो वो हाइपोथायरॉयड समझ के आपको ट्रीट करना है। जैसे मैंने एक मेनोरेजिया का पेशेंट पेरीमेनोपॉजल, तभी थायराइड इंसुलिन सब इम्बैलेंस रहते ही है, डायबिटीज और थायराइड हाइपोथायराइड होने के चांसेस जैसे मेनोपॉज एज में ज्यादा रहते हैं, उस तरह ये थायराइड जो है उसको अच्छी तरह से समझ लेना बहुत अच्छा जरूरी है।
साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी, वर्ड लिख के रखिए, इसके बारे में एक अलग लेक्चर होगा। साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी, और इसका रस और रस धात्वग्नि से बहुत जरूर ज्यादा संबंध है। हाइपोथायरॉयडिज्म का इससे संबंध है, और सीरम प्रोलैक्टिन जब बढ़ जाता है तभी भी एमेनोरिया और डिफरेंट काइंड ऑफ इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बीज स्थिर नहीं रहना ऐसे होता है। तो इसमें क्षयजन्य जब संप्राप्ति होती है तभी हमें सुवर्ण कल्प का यूज करना है, और जब भी हम वहां पे शोथजन्य संप्राप्ति है, मार्गावरोधजन्य संप्राप्ति है, विमार्ग गमनजन्य संप्राप्ति है, तभी ध्यान में रखना है आपको ये जो अवरोध है, आपको ये जो ब्लॉकेज है, वो इस लेवल पे भी देखना है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी, यहाँ से जो हार्मोन्स बहते हैं उसमें भी हार्मोनल ब्लॉकेज मार्गावरोध का ही एक लक्षण है, और इसके लिए हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया में हमने एक 10 पेशेंट्स का स्टडीज प्रेजेंट किया है, पब्लिश किया है। उसमें आर्द्रक स्वरस नस्य और कॉम्बिनेशन में उसमें हमने भल्लातक दूध में डाल के उसके बिंदु भल्लातक स्वरस नस्य, इसका हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया में बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। तो मिसकैरेज के बहुत, इसमें तो पूरा लेक्चर होगा, ये जो फॉर्मूले मेरे अनुभूत है वही मैं बोल के आगे चलती हूँ। इनफर्टिलिटी हमारा बहुत एक अच्छा ये है, उसमें मैंने साइक्लिकल पंचकर्म 3 या 6 या 9 साइकिल्स तक बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो इसमें क्या कारण है वो करके आपके पास जब सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक आता है तभी इनफर्टिलिटी में आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट आप हो तो आप शुक्र, पुरुष शुक्र जो बाहर जा रहा है उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव परीक्षण करो, और उसके अनुसार उसको आहार विहार और पूरा उपदेश करना है। मेल उत्तर बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट है। डोंट हेजिटेट टू गिव मेल उत्तर बस्ती अलॉन्ग विथ फीमेल उत्तर बस्ती। प्री कंसेप्शनल प्री कंसेप्शनल पूर्ण पंचकर्म का पैकेज 3 मंथ्स का देकर ही अगर बच्चा कंसीव होता है, वुमन कंसीव होती है, तो उसके बच्चे के गुण भी बहुत अच्छे रहते हैं, ये कन्विंस करना हमें आना चाहिए। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग सेंटर, ऐसा भी आपका एक सुपर स्पेशलिस्ट ये हो सेंटर हो सकता है, जहां आप हेरिडिटरी डिसीजेस को रोक सकते हैं, जहां आप अलग अलग पेशेंट का प्रेगनेंसी हेल्दी और हैप्पी कैसे जाए, इनफर्टिलिटी अगर बॉर्डर लाइन है वो कैसे ट्रीट हो जाए, वो सारे आप उसको गाइडेंस दे सकते हैं। तो देखो दिमाग में सेकेंड ओपिनियन के साथ साथ पीसीओडी क्लिनिक और प्री कंसेप्शनल क्लिनिक, इस तरह गायनेकोलॉजिकल अलग अलग ये आएंगे, और सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक आप कर सकते हो। प्रोलैप्स में देखो यूरेथ्रोसील है, यूटेरोसील है, या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, सॉरी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, सिर्फ वो एंटीरियर वॉल नीचे आ रही है, ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधा मूषक तेल पीछू का बहुत अच्छा फायदा मैंने प्रोलैप्स में देखा है, और अगर फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स है तो बस्ती, उत्तर बस्ती, मूषक तेल पीछू कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करता है। वहां पे विषय तिंदुकवटी और चंद्रप्रभा ये कॉम्बिनेशन से जो फ्लोर है, हम क्या करते हैं कि प्रोलैप्स के लिए जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, कीगल्स एक्सरसाइज, वो सारे देते हैं, लेकिन इसके साथ ये 2 ड्रग्स विषतिंदुकवटी और चंद्रप्रभावटी आप ध्यान में रखिए। मेरे वैयक्तिक प्रैक्टिस में उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मेनोपॉज हॉट फ्लैशेज में मैंने एचटी और क्षीर का उपयोग आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें आप मेनोपॉज क्लिनिक चला सकते हैं सिर्फ एक बात पे, उसके ऊपर भी हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया है जो आपको मैं फॉर्मूला शेयर कर देती हूँ। जब भी आप पेरीमेनोपॉजल एज में ही तिक्त क्षीर सर्पी बस्ती 5 और 1 निरूह बस्ती ऐसे कॉम्बिनेशन में 3 मंथ्स तक अगर देते हैं, तो हमने उसके बाद पहले और बाद में बीएमडी चेक किया, पेशेंट का पूरा कैल्शियम लेवल और पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस तरह उसके शरीर में है उसका सारा चेक किया, लक्षणात्मक चेक किया, और ऐसा देखा कि ये तिक्त क्षीर सर्पी बस्ती से मेनोपॉजल बहुत सारे सिम्टम्स कम होते, इवन रिवाइव होते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी तिक्त क्षीर सर्पी बस्ती, तो सिर्फ इसके ऊपर भी एक अक्का क्लिनिक चल सकता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। कई सारे आपको सिम्टम्स लेकर पेशेंट आएंगे, जैसे
उसमें कहीं पे टेक्स्ट में भी नहीं है, अपने आयुर्वेदिक टेस्ट में कहीं मिलेंगे तो गायनेकोलॉजी में हमने कभी सुने नहीं, सीखे नहीं। प्रैक्टिस में पेशेंट अपने को बोलते हैं वजाइना से हवा जाना, क्या करना है पेशेंट को, तो वात का कुछ दुष्टि है ऐसा जान के अपने, तो इस सिम्टम के लिए हमने बला तेल पीछू और फलग्रुत प्राशन का अच्छा रिजल्ट देखा है। फिर एक सिम्टम आता है लिबिडो कम होना, मीन्स सेक्स ड्राइव फीमेल के लिए कम होना, उसके लिए पूर्ण चंद्रोदय रस का बहुत अच्छा प्रयोग देखा है, चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग देखा है, और कॉम्बिनेशंस में अलग अलग कमल और इस तरह रसायन द्रव्यों का ये किया, इमोशनल नर्चरिंग का प्रयोग देखा है। तो सेक्सुअल हिस्ट्री हमारे सेकंड ओपिनियन क्लिनिक में हमें जरूर पूछनी चाहिए, और इसके लिए ये श्रीफल कुसुमवती है, इन सब चीजों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। रसायन का मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक लगता है कि ट्यूबल ब्लॉकेज है, और ट्यूबल ब्लॉकेज अगर 3 स्टेजेस पे रहता है, पूरा सल्फिंजाइटिस है, पूरा एकदम एडिशंस बन गए, उसके जरा पहले की स्टेज है कि थोड़ा मिडल तक ब्लॉकेज है, या तो थोड़ा सा मिनिमल स्पिल है। इस मिनिमल स्पिल में शीलाजीत और वंग भस्म का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। उत्तरवस्ती का प्रयोग तो हम देखते हैं, लेकिन उत्तरवस्ती के साथ शिलाजित वंग का प्रयोग बहुत अच्छा हमने देखा है कि काम आता है। तो रसायन चिकित्सा इसमें बहुत अच्छी, कोई कोई रसायन द्रव्य को आप जरूर यूज कीजिए, डाइट आपको जरूर एक्सप्लेन करना चाहिए, लाइफस्टाइल जरूर यूज करना चाहिए। ये सब सारी चीजें जो आपको मालूम है ऑलरेडी, वो मेरे एक्सपीरियंस के जो है मैं शेयर करना ज्यादा समझूंगी। बस्ती जरूर दीजिए, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। और हमने तो क्या किया है, इस तरह से बस्ती की किट्स बना दिए, जैसे मात्रा बस्ती का किट आपको मालूम है, लेकिन हमारे सृजा क्लिनिक में हमने पंचकर्म के इस तरह के किट बनाए हैं कि आप जैसे होटल में ऑर्डर देते हो, 15 मिनट के बाद आपका ऑर्डर आ जाता है। तो उस तरह कोरोना काल में जब आपको ज्यादा कोई असिस्टेंस नहीं है, आपको काढ़ा बनाने की फुर्सत नहीं, आपको एक ही आपके पास कोई काम करने वाला भी नहीं, आपके पास थेरेपिस्ट भी नहीं है, तभी ये किट बहुत अच्छे से काम आते हैं। उसमें सिर्फ निरोबस्ती का भी पूरा पाउच तैयार है, आप गर्म पानी डाल दो, ऑर्डर के बाद 5 मिनट्स में तत्क्षणम उस वक्त आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। बस्ती का ट्रीटमेंट है, बहुत सारे पेन्स में आप मात्रा बस्ती अच्छी तरह काम करता है, कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा सा तेल छोड़ के फिर निरुआ बस्ती का काम होता है। तो 5-10 मिनट्स में आपकी सारी चीजें विदाउट असिस्टेंट, विदाउट थेरेपिस्ट रेडी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ पंचकर्म। आपको ब्लड प्रेशर पेशेंट का चढ़ा हुआ है, हेडेक है, आपको रक्तमोक्षण करवाना है, रक्तमोक्षण का पूरा किट आपके पास विद थैली तैयार है, आप सिर्फ उसको ये करके 5 मिनट्स में रक्तमोक्षण, जब भी इंस्टेंट और एक्यूट कंडीशंस में आपको पंचकर्म करवाना है। वमन की हमारे पास गोली तैयार है, जब भी मेनोरेजिया हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, किसी भी कारण से नहीं रुक रहा है, तभी सद्यो वमन अगर हम देते हैं तो सद्यो वमन से तुरंत, जैसे अधोघ रक्तपित्त समझ के ऊपर ऐसे एक भी वेग आया तो ब्लीडिंग रुकने के कई सारे केसेस हमने देखे। उसके लिए वमन की गोली तैयार है, बस घिस के अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट उसको दे दी वमन किट से, तो 10 मिनट में आप पेशेंट को ब्लीडिंग रुकवा सकते हैं। और कोरोना काल है, थेरेपिस्ट नहीं है, इंस्टेंट रिजल्ट देना है, आपका सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक है, आप सुपर स्पेशलिस्ट आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हो, तो आपको ये सारे किट्स बहुत अच्छे से यूज होंगे। ऐसे ही नस्य के किट्स है, विरेचन के किट है, बस किट खोल के आपको पेशेंट को देना है। सबसे अच्छा मुझे लगता है वो तिक्तक शीर सर्पी बस्ती का किट, क्योंकि वो हम पेशेंट्स को घर में भी दे सकते हैं और पेशेंट घर में वो अच्छी तरह से ले सकता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो नहीं वाता धृते योनिम नारीणाम संप्रदुष्यति, और उसको बस्ती के बिना कुछ ट्रीटमेंट नहीं। उत्तर बस्ती में एक बात मुझे शेयर करनी है कि 3 स्तर पे उत्तर बस्ती होती है, पीचू से भी उतने ही फायदे होते हैं, प्लीज डू रिमेम्बर, पीचू से भी उतने ही फायदे होते हैं। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस 28 इयर्स का कहता है कि अगर आप उत्तर बस्ती जो इंट्रा यूट्राइन उत्तर बस्ती आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसके लिए ऑपरेशन थिएटर चाहिए, उसके लिए अच्छा सा पूरा आपको साउंड चाहिए, उसका पोजीशन देखना चाहिए, स्पेक्यूलम अच्छे से पकड़ने के लिए कोई असिस्टेंट चाहिए, पूरा निर्जंतुकीकरण चाहिए, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो पीछू से भी फायदा होगा। मूषक तेल है, बला तेल है, फलग्रुत है, पीछू रखेंगे तो भी वजाइनल लाइनिंग तक जो अच्छा फायदा होता है वो अच्छा फायदा होता है। तो पीछू आप
पीछू बना के, पीछू का भी एक किट बना के आप पेशेंट को दे सकते हैं। सर्वाइकल लाइनिंग का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल इरोजन है, सर्वाइकल सिक्रीशन पित्त डोमिनेंट होने के कारण उधर अंदर स्पर्म की परमेबिलिटी नहीं हो रही है, तब आपको आईयूआई कैन्युला से सिर्फ सर्वाइकल इंस्टिलेशन करना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उत्तर बसी। आई ऑलवेज टॉक लाइक दिस। तो पार्ट 1 इज पीछू, पार्ट 2 इज सर्वाइकल इंस्टिलेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड एरिया में अगर प्रॉपरली स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप दे सकते हो ये, तो जरूर उत्तर बस्ती सर्वाइकल इंस्टिलेशन आप दे सकते हो। ये दो तो आप विदाउट एनी ट्रेनिंग आज से आपके क्लिनिक में चालू कर सकते हो। इंट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन के लिए आपको थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, डिसइंफेक्टेड एरिया चाहिए, तो वो आप आपके आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड से सीख सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें तो अपने को अपने इसमें करनी है। एक मेन चीज मुझे यहाँ शेयर करनी है कि आप प्लीज लोकल इंस्पेक्शन जरूर कीजिए। बाहर अगर इन्फेक्शन है तो प्लीज पीछू, धावन या कुछ भी ऐसे अगर बाहर से आप पुश करते हो तो बाहर का इन्फेक्शन आप अंदर डाल रहे हो। तो लोकल परीक्षण करना मत भूलिए। उत्तर बस्ती इज मोस्ट यूजफुल पंचकर्म मॉड्यूल आई हैव एक्सपीरियंस इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस। और इसमें एक भी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। 2-3 पेशेंट में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, उसके बाद हमने एक मॉड्यूल डेवलप किया। उत्तर बस्ती के पहले निरूह बस्ती, उत्तर बस्ती के बाद प्रॉपर हेडलो पोजीशन और आईयूआई कैनुला से ही उत्तर बस्ती। 3-4 फॉर्मूले है। उत्तर बस्ती के पहले निरूह बस्ती का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से फायदेमंद होता है। योनि धावन का भी व्हाई नॉट, ये ध्यान में रखना है। मेडिसिन में ये सारी चीजें मुझे एकदम एक्सपीरियंस बेस्ड है। चंद्रप्रभावटी हार्मोनल इम्बैलेंस, आरोग्यवर्धिनी इन्फेक्शंस, कुबेरवटी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अनोवेलेटरी साइकिल्स, प्रताप लंकेश्वर एंडोमेट्रियोसिस, त्रिफला गुकुल अगेन पीआईडीज, परिप्लुता यूनिवर्पर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, फाइब्रॉइड स्वेलिंग्स, महायोगराज गुगुल फॉर एमेनोरिया, स्पेसिफिकली जो ऑब्स्ट्रक्टिव एमेनोरिया है, मार्गावरोध जन्य एमेनोरिया है, मीन्स हार्मोनल मार्गावरोध, ध्यान में रखना है। उस इसमें महायोगराज गुगुल का बहुत अच्छा फायदा होता है। मेनी प्रैक्टिकल आइडियाज आर देयर अराउंड अस इन द टेक्स्ट, इन आवर प्रैक्टिसेस। व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट, वी अंडरस्टैंड, वी हैव ब्यूटीफुली governed heritage of clinical practice gifted by our own Ayurvedic text. Only thing we need to open our eyes, take help of modern technology, and the tip from me is each and every एक तरी ओवी अनुभवी, तसे एक तो श्लोक आप practically use करके देखिए, so you will get the total satisfaction of being Ayurvedic physician, Ayurvedic gynecologist. And I feel मेरा जो first line था वही last line. Being Ayurvedic practitioner, you need to have tremendous faith in your own text, tremendous faith in your own science, and tremendous belief and trust in yourself. So if you are confident, your patient is going to get result 100%. मेरा पूरा नटशेल में एक लाइन में मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस का सक्सेस, मेरे सेटिस्फेक्शन का सक्सेस ये है कि अगर मुझे जब भी कॉन्फिडेंस लगा, जब भी मैं मेडिसिन देते वक्त, जब भी मैं पेशेंट से बात करते हो, टोटली कॉन्फिडेंट थी, पेशेंट को रिजल्ट मिलना ही मिलना है, एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना है। तो कंक्लूजन इज बेसिकली हील योरसेल्फ, and then each and every woman you will be able to heal. Healing is important, and beauty of gynecological treatment is healing emotionally, physically, psychologically, endocrinologically, and complete healing. I wish each and every practitioner present here should get the satisfaction of healing and giving the pain relief to their patients. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। जय निमा।
Thank you. Thank you so much, ma'am, for this extensive and practical knowledge. Like it will be very useful for us in our practice. Thank you so much. Ma'am, can we have few questions? Of course, yes. That's why I Okay. stopped So, ma'am, because the most. yeah. Yeah, ma'am, please go ahead. No, you tell me. We'll start questioning. Rapid fire. Okay. So, ma'am, the most asked question was to please repeat the cyclical panchakarma treatment you explained. Like Yes, cyclical panchakarma the already basti and virechana. told. Before periods, Yeah. 3 matra basti, 5th, 6th, 7 days, or only 5th day of the menses, Vaman. Then after ovulation is 12 to 14 days, Virechana. And after one cycle, Uttar Basti. Questions are Okay, there ma'am. in front of me. Uh, Nebathian cyst, then yeah, ma'am. adenomyosis, use of Uttar Basti. See, cyst are accumulation of fluid. Always rule out the possibility of making it like creating nuisance to the patient. Some of the cysts are self-relieving, physiological cysts, some of the cysts, and they actually disappear of certain time period of the time. But the cysts which are more than 5 centimeter, making nuisance, interfering in the pathophysiology, you need to treat it, and you can use Google over there. And for adenomyosis, Uttar Basti, I'm skeptical. I've not used Uttar Basti for adenomyosis. Vaginal dryness, Swarnamalini Vasant, again Kamal, Srifal Kusumvati, Shilajit. Even I use Makardhvaj for my menopausal patients. Cyclical Panchakarma for one cycle, no, 3 cycle to 6 cycle, or sometimes for 9 cycles also I've done. Infertility patient with One low question AMH. was. Yes, you please ask question. Yeah, ma'am. So the one question was, can Matra Basti be given to unmarried girls? Of course, yes. Matra Basti is meant for unmarried, means younger generation. It can be given, certainly given. Okay. Okay. मैम योग बस्ती में कौन से ड्रग्स यूज करने चाहिए जैसे आपने ल्यूकोरिया के लिए बताया योग बस्ती हाँ तो as we have our own पंचकर्मा किट तो हमारे किट में जो हमने निरोग बस्ती के लिए यूज किया है उसमें हम दशमूल बला रासना ऐसे कॉम्बिनेशन है और अनुवासन बस्ती के लिए हमने बेसिक में तिल तेल का यूज किया है फिर बला तेल है फिर दशमूल तेल तो कॉम्बिनेशंस में अलग अलग यूज कर सकते हैं एमएच के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं शरीर भाव शुक्र भाव आर्तव भाव ये प्लीज ध्यान में रखो तो उसमें आप स्वर्ण कल्प का अच्छा यूज कर सकते हो फॉल स्मेलिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड बॉडी एक्सुकेट इन एडोलसेंट पेशेंट के लिए पंचवल्कल का बहुत अच्छा लोकल फायदा होता है चंद्रकला पित्त का विशेषण है ना वहां पे तो चंद्रकला रस का बहुत अच्छा फायदा होता है चंद्रकला चंद्रप्रभा आरोग्यवर्धिनी त्रिफला गुगुल कैशोर गुगुल कांचनार गुगुल ये कॉम्बिनेशंस में अलग अलग बहुत अच्छी तरह से यूज होता है रिपीट सिंगल ड्रग्स एंड यूजेस देखो वासा व्हेन द अनोवुलेटरी ब्लीडिंग इज गुरवेल व्हेन अनोवुलेटरी ब्लीडिंग along with anovulation the patient is lean. Ashok after like copper T insertion. Lodhra for excessive bleeding. With clots bleeding, Pathakutash Gokshur. Then for spasm or more congestion in the uterus, when it's we use Nakeshar for endometrial hyperplasia, but congestion of the uterus, we use Khadir. So different Durva for infertility. Hormonal imbalance and high LH serum prolactin drugs.
ऑलरेडी टोल्ड फॉर हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कांचना गुगुल आरोग्यवर्धिनी कॉम्बिनेशंस में, और प्रताप लंकेश्वर रस, सूती का ज्वर इंडिकेशन है प्रताप लंकेश्वर, बट एनी swelling, this is Dr. Kathe madam's formula. Pratap Lankeshwar is very useful. And nasal instillation of Ballatak Bindu and Adrak Swaras Nasya. पंचवल्कल कैसे यूज करें? पंचवल्कल का पेंटा 5 करके एक टैबलेट भी, वजाइनल टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है, या तो पंचवल्कल कषाय चूर्ण आपको अगर डिकॉक्शन करके उसे योनि धावन कर सकते हैं. हाउ डू यू यूज एंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉर विड्रॉल ब्लीडिंग? उसमें स्वर्ण का कल्प मैंने 5th डे ऑफ द मेंसेस टू 10th डे ऑफ द मेंसेस, जब रज का क्षय हो रहा है तभी आपको वहां अलग अलग ड्रग्स देने हैं. कभी वसंत कुसुमा कर देना है जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कभी स्वर्णवाहिनी वसंत देना है जब भी आपको लाइनिंग बहुत थिन है और आपको ट्रिपल लाइन लाइनिंग के लिए करना है, तो ये कल्प बहुत अच्छे यूज होते हैं. Primary amenorrhea 17 years, hypoplastic uterus 4 centimeter, hormonal study within normal limit. Primary amenorrhea उसमें रिस्ट का एक टेस्ट होता है जिसमें बोन एज समझता है, तो दैट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके ऊपर बहुत सारे, जैसे हमने बोला है कि अस्थि धातु और उसके बाद में मज्जा और शुक्र होता है, तो अस्थि धातु का वहाँ परिपोषण बहुत अच्छा है. और उसमें यापन बस्ती, मैंने हाइपोप्लास्टिक यूटरस विथ प्राइमरी एमेनोरिया के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ यापन बस्ती हमने दी है, और उसका फायदा मैंने देखो उसमें असाध्य और कष्टसाध्य बोला है. तो प्राइमरी एमेनोरिया की एक पेशेंट विथ हाइपोप्लास्टिक यूटरस मेरी अच्छी कवर हुए, उसकी केस स्टडी अगर आपको चाहिए तो कभी मैं दूंगी, या तो मेरा नंबर ले लीजिए. मैंने आपको मैं उसके बारे में एडवाइस करूंगी. मीन्स मेरा जो प्रेजेंटेशन है for hypoplastic uterus I can share with you. Then adolescent girls में vaginal tablet यूज नहीं कर पाएंगे. हाँ, पंचवल पेंटाफाई की टैबलेट अवेलेबल है ऐसे मैंने बोला मैडम. आप पंचवल्कल डिकॉक्शन से लोकल क्लीनिंग कर सकते हो पंचवल्कल से. एडोल्सेंट देखो ये सारे योनि धावन, योनि पीछू, उत्तर बस्ती, above like in fertile age, bala, mugdha, praudha और pragalbha, 4 stages of woman's life. When you are using local applications, please do remember बाला और मुग्धा में लोकल एप्लीकेशन बहुत ही सावधानी से करना. नहीं किया तो भी चलेगा. तो उनके सिक्रीशंस के लिए आप नाभि पूरण कर सकते हैं, उदर पट्टन कर सकते हैं, या तो बस्ती ट्रीटमेंट्स उनके लिए अच्छे फायदे से शेयर होते हैं. बिफोर मैरिज लोकल योनि धावन मैं प्रेफर नहीं करती. मेडिको लीगल केस आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. मेडिको लीगल से मेरा मोबाइल नंबर आप प्लीज रितिका मैडम, मेरा मोबाइल नंबर आप उनसे साथ प्लीज शेयर कर दीजिए. Treatment of 4th month pregnancy with DM, hypertension and uterine prolapse. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डॉक्टर उन्नति पटेल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. उन्नति जी, यही मैं बोल रही हूँ जो आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट का रोल है. अगर आपके पास 14 to 17 इयर्स मीन्स बाला मुग्धा की पेशेंट पीसीओडी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए आ रही है, आपने उसका इंसुलिन टेस्ट किया और क्या बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके कारण पीसीओडी है, ध्यान में रखो यही पेशेंट, ये पूर्व रूप है, यही पेशेंट बाद में जाकर प्री डायबिटिक स्टेज है. प्री डायबिटिक स्टेज क्षय प्रकोप प्रसर स्थान संशय व्यक्तिभेद क्रियाकालम न हापयेत. Please don't ignore the exact point where you need to intervene, where you need to treat the patient. तो पीसीओडी पेशेंट वही ट्रीट कीजिए तो उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज नहीं आएगा. इफ यू कैन प्रिवेंट पीसीओडी बिफोर द कंसेप्शन तो डायबिटीज नहीं होगा. 4th मंथ में अगर डायबिटीज है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर उसका कौन सा शुगर लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी डायबिटीज समटाइम्स कॉजेस न्यूनेटल एस्फिक्सिया. So don't ever ignore the pregnancy diabetes. It can cause the neonatal asphyxia or even intrauterine fetal death.
तो डायबिटीज को प्रेगनेंसी में कंट्रोल करना जरूरी है. थायराइड का मैंने 2.5 का बोल दिया. हाइपरटेंशन ऑल्सो. एक बहुत सिंपल मैंने प्रैक्टिस में देखी हुई चीजें आपको प्रैक्टिकली शेयर करती हूँ. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब पेशेंट आपके पास आती है, आप उसका बीपी देखो, हमेशा 90, 60, 160 लोअर रेंज में रहेगा. फर्स्ट साइकिल में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर बीपी थोड़ा हायर रह रहा है तो प्री एक्लेम्शिया का ये पूरा रूप हो सकता है. तो प्लीज बी विजिलेंट और प्लीज इंटरवेन इनिशियली ओनली. अगर 4th मंथ में हाइपरटेंशन और डायबिटीज है तो आपको होलिस्टिक अप्रोच लेना है. आपको उसके साथ कुछ मॉडर्न ड्रग्स यूज करना जरूरी है, और उसमें यूट्राइन प्रोलैप्स भी है तो आप उसको लोकल पीछू दे सकते हो, अधोदर लेपन दे सकते हो, उसमें आंवला और हल्दी का प्रयोग उसके खाने में कर सकते हो. तो मैं अपने पेशेंट्स को इंसुलिन के साथ आंवला हल्दी का रसायन देती हूँ. रसायन चिकित्सा 4th मंथ प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है. मासानुमासिक इसके लिए. हर्सुटिज्म के लिए कोई ट्रीटमेंट है रिमोलेपियस. हमने एक बहुत अच्छा लोम शातन योग करके फॉर्मूला ढूंढ निकाला है, जिसमें कदली कंदक क्षार है और कई सारे क्षार है, जिसको हम छाछ में मिलाकर अगर लेपन करते हैं तो हर्सुटिज्म चला जाता है. विद्याग्नि से हम उसका जो रूट है फॉलिकल का वो निकाल देते हैं, तो उसके कारण भी नया या नाग्नि चिकित्सा से हर्सुटिज्म कम हो जाता है. उसमें नस्य चिकित्सा बहुत अच्छी तरह से काम आती है हर्सुटिज्म में, और बेसिक हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रीट करना बहुत जरूरी है. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी एमेनोरिया इन 18 years old, अगेन स्वर्णकल्प का यूज है, कमल का यूज अच्छी तरह से आप कर सकते हैं. लेखन करना है, शोधन करना है या शमन करना है, आपको वो फॉर्मूला आपका डेवलप करना बहुत जरूरी है. एंडोक्राइनोलॉजिकल स्टडी करना बहुत जरूरी है. पीसीओडी कंप्लीट क्योर हो सकता है क्या? पीसीओडी इज अ pathophysiological disturbance of the patient. Many of the times it's genetic, related with the hereditary or family history of diabetes. Always remember, we can control. This is yapya vyadhi, so you can have control. Completely cure means, मेरे पास जो patient है, my clinical experiences says that if she gets proper regular menstrual cycles, she gets proper symptomless cycles, and no amenorrhea or menorrhagia fluctuation, her borderline pathophysiology is taken care of. But always remember, one or other time the symptoms may occur when she will forget to follow the lifestyle modification. So PCOD में, once a PCOD, you need to treat the patient, you need to remember this history for her lifelong, and you should treat accordingly. So many questions. Sorry to disturb you, ma'am. Yes, Ritika madam. Yes, because I'm eager due to lack of time, we'll have to stop. Yes. Yeah. Yes. There are more than, I guess, 100 questions. Yes. So it won't be possible to answer. Yes, all. and I'm eager to So listen to my chairperson also. Now I can see her. Yeah, sure. my Yes, idol. Welcome, ma'am. Rajita madam. Welcome, ma'am. Hello, Madhura. Thank you so much for welcoming me. And it was really a beautiful experience to hear Dr. Madhura. She is a well-known gynecologist from the Ayurvedic field. And also she is very much interested in NIMA, as NIMA is promoting integrated medicinal therapy always. And even we also always support NIMA, because sometimes we have to use some modern medicines in the practice, which is necessary. I think Dr. Madhura has touched each and every aspect of the gynecology as it was possible, because it is a vast subject, of course, and totally taking each and every disease is not possible in the lack of time. But whatever time she had touched each and every subject and explained beautifully all the treatment given by her and her practical experience. Her knowledge will be really helpful to all the students who are hearing this lecture. And of course, she always shares her experiences and knowledge with everyone, as I know her.
But one thing I would like to suggest to all the listeners, that whatever the experiences she is sharing or anyone else shares with you, it totally depends on your practical experience also, as how the patient comes to you, what symptoms they are giving, what is their prakruti, what is their vikruti, what is their dosh, dushya, what is their other symptoms. It totally depends the treatment, how it changes and how it works. So taking the tips from Dr. Madhura or any other person, first apply your common sense, your knowledge, and also your experiences. That's what I would like to suggest. And again, I would like to thank NIMA, all the members of the NIMAs, and I would like to thank Madhura for suggesting my name. And I congratulate her for such a lovely lecture. Thank you so much. Thank you. I've learned from you. Thank you so much. So, thank you so much. Thank you so much. So now I'll proceed with the vote of thanks. Thank you, our chairperson, Dr. Rujita Dubey, ma'am, for attending our function in your busy schedule. We'll definitely cultivate your advice you have given us. And also thank you to our speaker, Dr. Madhura, ma'am, for giving us such a valuable and extensive knowledge. It is my pleasure to thank all the dignitaries of NIMA present here. And also the webinar core team. Without you all, it won't be possible to organize such an event. Like, we have more than 300 participants, so it's a big event. Thank you so much. Now, declare the session is concluded. Thank you. Thank you, ma'am. thank you.